Students, welcome back. I'm Pradeep Faswal. I'm here moving ahead with exercise number 6. As I have told you earlier that our next exercise would be use of had to plus verb first. Till now we have covered 5 exercises and I believe that you are practicing those exercises, and after this exercise, today I will take a session wherein I will help you out with all those sentences that I have provided you with in the previous exercises. So let's go ahead and save our time and finish this exercise very quickly. Use of had to plus verb first. It is used for past tense, means it is used for past, means telling someone something about past or some event that has taken place in past, means something related to past only, means when you had to do something under duress, means under pressure, you acted on something. That thing you can tell taking help of had to. Had to का यूज कहाँ करते हैं? जब आप पास्ट का कुछ ऐसा कर चुके हैं जिसमें आप बताते हैं कि आपको वो काम करना पड़ा या करना पड़ता था, तो अंडर ड्यूरेस, अंडर प्रेशर, दबाव में आकर आपको कोई काम करना पड़ा, तो उस चीज को आप had to के माध्यम से बताते हैं. We can also say that unwillingly आपको कोई काम करना पड़ा, तो मीन्स unwillingness to do something, मीन्स आपका मन नहीं था उस काम को करने का लेकिन आपको वो काम करना पड़ा या करना पड़ता था. तो पहचान हमें पता चल गई है. रिकॉग्निशन, जब आपको कोई काम करना पड़ा या करना पड़ता था, मीन्स you felt so much of pressure and you were not willing to do that particular task but you had to. आप करना भी नहीं चाहते थे उस काम को लेकिन आपको करना पड़ा अनिच्छा से, तो वहां आप इसका यूज करते हैं. लेट्स गो अहेड. वी हैव सम एग्जांपल्स टू अंडरस्टैंड इट प्रॉपर्ली. उसे मजदूरी करनी पड़ी. वो मजदूरी नहीं करना चाहता था लेकिन उसको करनी पड़ी. हमें बहुत ज्यादा काम करना पड़ता था. बहुत ज्यादा काम करना हम नहीं चाहते थे लेकिन हमें करना पड़ा. क्या अमन को इस्तीफा देना पड़ा? उस अफसर को कहां कहां से संसाधन जुटाने पड़े? आपको उन दिनों कहां से और कितनी आर्थिक सहायता लेनी पड़ती थी? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द लास्ट वन हियर इन दिस सीरीज. पिछले वर्ष आपके किस ईमानदार मित्र को जेल जाना पड़ा? नाउ हियर वी हैव सम vocabulary words. Let's pay attention to those words. मजदूरी करना, do labor. इस्तीफा देना, रिजाइन करना, RESIGN. आगे हैं संसाधन जुटाना, अरेंज रिसोर्सेस. इकोनॉमिकल या फाइनेंशियल हेल्प होती है हमारी आर्थिक सहायता. नाउ सी हियर, वी विल गो बाय रूल्स. As we have learned about rules in previous exercises, so now we have a quick revision on that part. Remember, we need to be very fixed to these rules. It is very helpful for us. If we understand this concept, if we practice this concept or these structures, it will be very, very helpful for us in future. Now see here, subject gets preceded with had to, it gets preceded with verb first, and it ends in with object here. It ends in object here, means you find object at the end, and there could be something as complement at the end, but you need to understand it till object only. तो पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर आप हैड टू का यूज करते हैं, फिर वर्ब फर्स्ट और ऑब्जेक्ट. जैसा कि आपको पता है, ये अगर नेगेटिव हो जाता है एट द टाइम यू आर सपोज टू यूज नॉट आफ्टर दिस हैड, तो आप हैड टू नॉट यूज ना करके यू यूज हैड नॉट टू. ऑल्सो यू कैन फॉर्म नेगेटिव कॉन्ट्रेक्चुअल वर्ब हियर, हैडंट. आप इसको क्या भी लिख सकते हैं? हैडंट भी लिख सकते हैं. hadn't to भी आप इसको लिख सकते हैं. It would be easy for you. Now see here, interrogatives की जब बात करते हैं, we better understand now that we have two types of interrogatives. One is confirmative, जिसको आप पक्कीकरणात्मक बोलते हैं. Another one is informative, जिसको आप सूचनात्मक बोलते हैं.
So let's talk about confirmatives first. Confirmatives always start with क्या in Hindi and with helping verb in English. अगर मैंने कहा क्या आपको रोहित की सहायता करनी पड़ी, तो मैंने कहा क्या आपको रोहित की सहायता करनी पड़ी. इन दिस केस वी सी दैट कि यहां पर ये क्या है, आपका कन्फर्मेटिव है, पक्कीकरणात्मक प्रश्नवाचक वाक्य है. एंड हियर यू एक्सपेक्ट आंसर. विच आंसर? जैसे कि हमने पिछली क्लास में बात की थी, मोनोसिलेबल आंसर. इनमें आप पाएंगे यस और नो में इसका आंसर आप पाएंगे. सो इन इंग्लिश वी स्टार्ट इट विद हेल्पिंग वर्ब ओनली. और हेल्पिंग वर्ब आपको पता होनी चाहिए कि सब जब सेंटेंस को पढ़ लेते हैं उसके लास्ट में पता चलता है कि वो कौन सा टेंस है, वहां कौन सी स्थिति में और कौन सी हेल्पिंग वर्ब आप यूज करते हैं. मूविंग अहेड, इंटेरोगेटिव में जब इंफॉर्मेटिव की बात आप करते हैं तो आप क्या करेंगे, यू स्टार्ट विद डब्ल्यू एच. जैसा कि हम अभ्यास कर चुके हैं, ever we experience a sentence that is of this nature wherein we feel that कि वाक्य के बीच में आया है क्यों, कब, कहाँ, क्या, किसका, कौन, कौन सा, किनका, कैसा, तो वहां पर आपको वो डब्ल्यू एच यूज करना पड़ेगा. एट टाइम्स आप पाएंगे कि डब्ल्यू एच के साथ जो इंफॉर्मेटिव्स होते हैं, सारे इंफॉर्मेटिव्स होंगे ना डब्ल्यू एच वाले, तो अभी क्या होगा, एट टाइम्स यू एक्सपीरियंस कि डब्ल्यू एच क्या करता है, इट वेलकम्स दिस ऑब्जेक्ट विद इटसेल्फ. मीन्स विद इट डज व्हाट, इट टेक्स दिस ऑब्जेक्ट विद इट. सो डब्ल्यू एच ऑब्जेक्ट एक फॉर्मेशन है, एक प्रश्नवाचक शब्द भी बनता है और एक कनेक्टर भी बनता है. तो यहां हम प्रश्नवाचक शब्द की बात करते हैं. कैसा शब्द, डब्ल्यू एच प्लस ऑब्जेक्ट, दैट वी हैव लर्नड इन आवर very first exercise about WH family words. So WH object gets preceded with your helping verb as per the traditional rule. After this we see that here we place our subject, it gets preceded with to and then verb first, and you place your sign of interrogation stating that this is the end of this question formation. Now see here we have something very important to know about as not. यहां मैंने लिखा है एक not. was were plus to is equal to had to. इसका मतलब है कि हमने एक was were to की एक्सरसाइज की थी, तो वहां हमने देखा मुझे दिल्ली जाना था. I was to go to Delhi. अब आजकल क्या है, there is a trend that people use that I had to go to Delhi. So वही बात आती है एक्सप्रेशन वाली. जैसे प्रीवियस एक्सरसाइज में भी हमने देखा था कि कैसे इसको डिफरेंशिएट करेंगे कि भाई यहाँ पर हैड टू का मतलब और वॉज टू का मतलब एक ही है. मैंने कहा आई वाज टू गो टू दिल्ली, फिर मैंने कहा आई हैड टू गो टू दिल्ली. तो यहाँ पर हमने पाया वॉज टू वर्ड टू इज इक्वल टू हैड टू, बट हैड टू इज नॉट इक्वल टू वॉज टू वर्ड टू. मैंने कहा मुझे दिल्ली जाना पड़ा, मुझे दिल्ली जाना पड़ता था उन दिनों, तो मैं क्या कहूंगा, आई हैड टू गो टू दिल्ली दोस डेज. मीन्स यहां पर जो एक्सप्रेशन आएगा दैट विल बी like we just come up with some pressure. We tell someone that okay, I was unwilling to do this task or this activity, so that time we use it. So here understand this concept, was to were to is equal to had to, but had to is not equal to was to were to. कि पढ़ता था और पढ़ा की सेंस में आप was to were to यहाँ यूज नहीं कर सकते, लेकिन मैंने कहा जाना था, खाना था, कोई काम करना था, वहां आप was to were to भी यूज कर सकते हैं और had to भी वहां यूज कर सकते हैं, दोनों ही सही होते हैं. Okay, now see we have some more examples. Let's understand these. उसे खूब दर्द सहन करना पड़ा. यहां पर सभी के साथ had to यूज होना है. So उसे मतलब he या she आप कह सकते हैं. He had to. I can write it like this. He had to bear. सहन करना. He had to bear so much pain, so much agony or pain. I can write it like this. उसे खूब दर्द सहन करना पड़ा. He had to bear so much pain. क्या उस किसान को अपनी जमीन का टुकड़ा बेचना पड़ा. मीन्स वो बेचना नहीं चाहता था, मजबूरी में उसको वो काम करना पड़ा. सो एट दैट टाइम वी कैन गो बाय द स्ट्रक्चर हियर. क्या उस किसान को, क्या से शुरू हुए, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा. हेल्पिंग वर्ब की पहचान वाक्य के अंत से पता चली, बेचना पड़ा. had that farmer, had that farmer.
Had that farmer. Now we will call in use of to. It is contractual verb. Contractual verb, you see that there are 2 or 3 parts of verb, then it becomes a contractual verb. So there are 2 parts, had to, तो यहाँ पर आपने इसका split form में use किया दूसरा part subject के बाद. Had that farmer to sell. Had that farmer to sell his piece of land. And question mark. So that's how you go for it. उन्हें कितना और धन जुटाना पड़ा. How much more? कितना और WH ऑब्जेक्ट की फॉर्मेशन है. How much more? How much more money? How much more money had they? Had they to arrange? I feel you have understood this exercise and it is not a tough deal for us to attempt these questions. And now, soon after this exercise, we are going to attempt all those questions that we have already taken in previous exercises. So I will come up with that help to you all soon after this now. Thanks a lot.